before going to start our today's session, I want to ask you a few questions. So tell me students, when your mom or anyone from your home wash the clothes, where they keep that clothes to? Where they keep that wet clothes? When your mom or anyone from your home wash your clothes early in the morning, then where she keeps that clothes, wet clothes? Yes, Sankeet? Jatin? Yes. Yes, sir. When your mom or anyone from your home washes your clothes, जब आपके कपड़े वो धोती है सुबह सुबह या कभी भी दिन में, तो वो सुखाने के लिए कहाँ पे डालते हैं? Where she keeps that clothes, wet clothes? Where she hangs that clothes? Yes, Jatin Parmar. Answer. Unmute your mic and. Balcony. Balcony में, but what is there to hang that clothes in the balcony? What thing used to hang that clothes there? धूप में। नहीं, बस कहाँ पे लटकाते हैं, मतलब किस चीज पे लटकाते हैं उसको? कोई रस्सी होती है, रोप या रस्सी होती है, राइट? एक पतली सी वायर होती है या फिर रोप होता है, या फिर अभी हैंगर्स भी आ गए हैं. सो यूजुअली इन द विलेज एरिया, इन टाउनशिप, the people used to keep their clothes on the wire or on the rope. घर के बाहर एक वायर या रोप बाहर लगा देते धूप में, and they used to keep their clothes there, wet clothes, कि वो सूख सके. So that line is called as cloth line. Cloth line मतलब कपड़ों की लाइन, कपड़े रखने की लाइन या कपड़े रखने की रस्सी. So regarding that, there is a poem given to us to study in the second unit 2.1. First poem is there. The name of the poem is The Cloth Line. So now today we are going to learn that poem. So let us see what is there, what is given, and what is given in the Cloth Line poem. I will share my screen to you. See, you can see my screen. Are you able to see my screen? Yes or no? Yes. Okay. So let us see the poem. Poem is written by Charlotte Bridget Cole. The poet has imagined how the cloth line is, and she has very beautifully imagined and explained the things about the cloth line and the cloth hanged on that cloth line. Very imaginative way. So before going to learn this poem, I will read it loudly for you. So you all have to keep your eyes on the word which I am reading, and you have to keep your ears towards the word, towards the pronunciation of that word, so that you will become able to read that and pronounce that word properly whenever you want to read that. Okay, so I'm reading this poem loudly to you. You all have to listen it carefully. 2.1, The Cloth Line. Hand in hand they dance in a row, hither and to and fro. Flip, flap, flap, and away they go, blood-string creature as white as snow. Like a rescue horses, they caper and dance. Like fairy tale witches, they widely dance. Rounded in front but hollow behind, they shiver and skip in the merry march wind.
Once I saw dancing excitedly, struggling so widely till she was free. Then leaving pegs and clothesline behind her, she flew like a bird and no one can find her. Like a sail in the sun, flipping and flapping for fun. Nobody knows where she now can be, hid in a ditch or drowned in the sea. It was a handkerchief. Sorry. Okay. Sorry. Screen. The last two lines was remaining. She was my handkerchief not long ago, but she'll never come back to my pocket. I know. So this is all about the poem. This is the way you have to read your poem and pronounce the words when you read this poem at your home. Now we'll start explaining uh, stanza by stanza. In the first, in the whole poem, the poet has imagined how the clothesline is and how the clothes they act when they keep on the clothesline. And the poet has imagined that the clothes are dancing, how they're dancing, they are shivering in a march wind. What is this? All these imaginations about the clothes who, which kept on the clothesline are made by the poet in this poem. So in the first stanza, hand in hand they dance in a row, hither and thither and to and fro. So basically, when clothes keep on that clothesline, the one cloth nearby another cloth, all that clothes are in the line, kept in the line. So poet is saying that the poet जो clothes है they have their hands in hands. जैसे कि एक दूसरे के हाथ में हाथ लेके वो क्लॉथ लाइन पे खड़े हैं. जब भी हम कपड़े सुखाते हैं दैट लाइन पे, तो एक के बाजू में एक के बाजू में एक ऐसे सीधे लाइन में रखते हैं. तो ये देख के कवि को इमेजिन हो रहा है कि कपड़े एक दूसरे से हाथ में हाथ मिला के खड़े हैं या उस लाइन पे बैठे हुए हैं. हैंड इन हैंड दे डांस इन रो, और वो हाथ में हाथ लेकर डांस कर रहे हैं. यू नो व्हेन द वाइंड कम्स, जब भी हवा आती है, तो दैट क्लोथ्स विल मूव हियर एंड देयर. कपड़े वो हवा की झोंके से इधर उधर हिलते हैं. सो पोएट हैज इमेजिन दैट द क्लोथ्स हैंड इन दे हैव कीप हैंड इन हैंड, एक दूसरे में हाथ लेके दे आर डांसिंग इन अ रो, वो लाइन में डांस कर रहे हैं. that seems that clothes are dancing in a row, keeping hand in hand, hand of another clothes in our hand. एक दूसरे के हाथ में हाथ लेके वो लाइन में डांस कर रहे हैं. hither and thither and to and fro, और वो यहाँ वहाँ ऊपर नीचे इधर उधर ऐसे डांस कर रहे हैं. they are dancing hither and thither and to and fro, ऊपर नीचे आगे पीछे they are dancing. जब भी हम डांस करते हैं तो हमारे बॉडी के मूवमेंट्स कैसे होते हैं? Left, right, straight, forward, back, upward, downward. Similarly, the clothes are also dancing, keeping hand in hand, hither and thither and to and fro. यहाँ वहाँ ऊपर नीचे इससे वैसे वो डांस कर रहे हैं, सब स्टेप्स में डांस कर रहे हैं. तो देखिए कपड़े लाइन पे टंगे हुए हैं, and the poet is seeing that looking towards that clothes and how that the thought, and I have imagined that the clothes are dancing. They have kept their hand in your hand and dancing up and down, hither and thither and to and fro. In this way, the clothes are dancing. In the second two lines, flip, flap, flap, and away they go. Fluttering creature as white as snow. See, जब भी ये whenever the clothes move here and there, hither and thither, to and fro, and then the flip, flap, flop, like this is the sound when we dance, when we clap, such a type of sound will occur. So similarly, they are creating flip flap flop sound and away they go.
ऊपर जाते हैं, एंड अवे देखो ऊपर चले जाते हैं, ऐसे उड़ते हैं रस्सी से. Flood ring creature as white as snow. So there is a creature, flood rings creature. This is an animal which usually found in a snowy region. बर्फ की प्रदेश में एक एनिमल पाया जाता है कि बहुत ही एकदम शुभ्र होता है, व्हाइट होता है, द ब्राइट. तो वो poet is imagine that they are looking towards like that क्रिएचर, उस एनिमल की तरफ वो दिखते हैं. जब वो ऊपर नहीं जाते हैं फ्लिप फ्लैप फ्लॉप करके आवाज करके, when they go away they go, it seems that this is like a that animal which is very white and like a snow, बर्फ की तरह एकदम एकदम व्हाइट ऐसे एनिमल की तरफ वो दिखते हैं, ऐसे पोएट को इमेजिन हो रहा है. So this is the first stanza. Now the second stanza, like rescue houses they caper and prance, like fairy tale witches they wildly dance. Like rescue horses. Do you all you know about the horses? Horse is the animal which is the very fastest running animal and which is strong animal and which is very enthusiastic animal. Horse is known for his energy, his enthusiasm. So like a rescue horses, horse है but rescue horses means restless, जो कभी थकता नहीं है, बहुत ही उछलता हुआ जो प्राणी होता है एकदम, जो ऑलवेज रेडी होता है भागने के लिए, दौड़ने के लिए. लाइक रेस्क्यू हॉर्सेस, रेस्क्यू मीन्स रेस्टलेस, जैसे कि कभी आराम करना पसंद नहीं है. वैसे तो हॉर्स की खूबी है कि वो कभी आराम नहीं करता ज्यादा, वो थकता भी नहीं है. सो लाइक रेस्क्यू हॉर्सेस दे केपर एंड प्रांस. सिमिलरली एज लाइक रेस्क्यू हॉर्स, जैसे कि रेस्क्यू हॉर्स कभी थकता नहीं है और ऊपर नीचे यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है, भागता रहता है एनर्जेटिकली. सिमिलरली they means the clothes which are kept on the cloth line caper and prance. They are up डांस कर रहे हैं. केपर एंड डांस, केपर एंड प्रांस का मतलब है डांस, हलचल करना. केपर का यहाँ पे हमें मतलब दिया गया है. देयर इज द मीनिंग गिवन behind the poem is केपर लीप स्किप और डांस अबाउट इन लाइवली प्लेफुल मैनर. मतलब बहुत ही जिंदा दिली से डांस करना, एकदम लाइवली, एकदम अंदर से एकदम उछल के डांस करना. एंड प्रांस का भी मतलब सिमिलरली है, वॉक और मूव विथ हाई स्प्रिंगली स्टेप, और ऊंचे ऊंचे उड़िया जंप्स लेना. नाचते हुए जब हम जंप लेते हैं, यहाँ से वहां मूव करते हैं, बड़ी बड़ी जंप लेते हैं, तो सिमिलरली जैसे कि हॉर्स बड़ी बड़ी लंबी लंबी छलांगे लगाता है, उसी तरह वो कपड़े जो है लाइक रेस्क्यू हॉर्सेस दे केपर एंड प्रांस, उसी तरह वो कर रहे हैं. दे आर एक्टिंग लाइक दैट रेस्क्यू हॉर्सेस, दे आर केपरिंग एंड दे केपर एंड प्रांस. वो बहुत उछल रहे हैं, डांस कर रहे हैं लाइवली, लाइक अ केपर हॉर्स, लाइक अ रेस्क्यू हॉर्स, सॉरी. And like a fairy tale witches they wildly dance. Now all of you have know about the witches. It is a imaginary character. Witches कभी असली में होती नहीं है, but that is imaginary character given in the fairy tales, जो कि परी कथाओं या हमारी नानी नानी से हमने जो कथाएं सुनी होती है, उसमें हमें चुड़ैल का जिक्र तो आता ही है. एक चुड़ैल होती थी, उसके बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते थे एंड बड़े बड़े नाखून होते थे, एंड वो रात को 12 बजे बहुत जोर से उछल उछल के नाच रही थी. दैट इज एन इमेजिनरी कैरेक्टर. बट जैसे कि हमें पता है उस चुड़ैल के बारे में परी कथाओं में से, या जो फेरी टेल्स होते हैं, हमारी नाना नानी मम्मी पापा जो हमें कहानियां सुनाते हैं, उसमें विचेस का तो जिक्र आता है. सो लाइक अ फेरी टेल विचेस दे वाइल्डली डांस. जैसे फेरी टेल में जो विच होती है बहुत डांस करती है, बहुत जोर से हंसती है, उसी तरह वो वाइल्डली डांस कर रहे हैं. कपड़े जो डोरी पे टंगे हुए कपड़े हैं, द क्लोथ्स व्हिच आर kept on the clothesline are dancing so wildly that they seems they are dancing like a witches which are which we know about the fairy tale. जो फेरी टेल में जैसे चुड़ैल जोर जोर से नाचती है, उछल उछल के नाचती है, सिमिलरली वो कपड़े भी आज नाच रहे हैं. ये पोएट देख रहा है. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द वाइंड, हवा आती है उससे वो कपड़े उछल रहे हैं इधर उधर. तो कवि को ये लग रहा है, पोएट को ये लग रहा है कि वो कपड़े जैसे उस चुड़ैल की तरह डांस कर रहे हैं. फेरी टेल में जैसे चुड़ैल का वर्णन आता है, डिस्क्रिप्शन आता है, सिमिलरली दैट क्लोथ्स आर डांसिंग सो वाइल्डली लाइक अ
fairy tale witches. Rounded in front but hollow behind, they shiver and skip in the merry march point. Now the clothes में तो कोई आदमी होता नहीं, that is rounded in front. अंदर अगर अब उनकी हवा घुस जाती है तो फूक जाते हैं. That they seems rounded from outer side, but hollow behind. पीछे से वो hollow है, खोखले है, जिसमें कुछ है नहीं, खाली है. सामने से when we see from the front side, we see that the clothes are rounded. एक मोटे मोटे या बड़े बड़े दिख रहे हैं, rounded shape दिख रहे हैं. But if we go behind that clothes, we come able to know that hollow behind. They are hollow from behind. Behind जो साइड है, पीछे की जो साइड है, वहां में वो hollow है, खोखले है, उनमें कुछ है नहीं कपड़ों में. सामने से वो लगता है कि वो राउंडेड है, भरे हुए हैं, बड़े बड़े है, फुगे हुए हैं. बट hollow in behind, they shiver and skip in the merry march while. Now, usually in our India, जनवरी फरवरी में जो ठंडी हवा होती है, सिमिलरली वैसे मार्च में उधर ठंडी हवा होती है, मार्च वाइन में उधर बहुत ठंडी लगती है. जैसे एरिया में, जिस एरिया से पोएट बिलोंग करती है उस एरिया में, so the shiver and skip is the merry march वाइन. तो उनको ऐसे लग रहा है पोएट को कि जो कपड़े से थरथरा रहे, कांप रहे हैं, जैसे कि हम लोग मार्च की ठंडी हवा में ठंडी से कांपते हैं, उस तरह that the clothes are shivering in the merry march वाइन. तो वो थरथरा रहे हैं, कांप रहे हैं कपड़े, जैसे कि हम लोग ठंडी के मौसम में कांपते हैं. Similarly, that the clothes which are kept on the clothesline are shivering like we shiver in the merry march wind. जब हम मार्च या जनवरी फरवरी की एकदम ठंडी और आह्लाददायक हवा होती है, उस तरफ हम ठंडी हवा से जैसे कांपते हैं, उसी तरह वो कपड़े टंगे हुए हैं, and they are shivering. In the next third para, once I saw dancing excitedly, struggling so widely till she was free. Once the poet has saw, there is the cloth which is dancing so excitedly. मतलब क्या हो रहा है कि एक बार कवि ने देखा कि एक कपड़ा है जो बहुत एक्साइटेडली डांस कर रहा है, बहुत ही उछल रहा है, मतलब वो बहुत ही हिल डुल रहा है. इन द फैक्ट एक्चुअल में वो बहुत ही जोर से हवा आ रही होगी या कुछ हो रहा होगा, एंड दैट क्लॉथ वाज मूविंग हियर एंड देयर, हिदर एंड दिदर, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो. इस तरह वो मूव हो रहा है कपड़ा बहुत ही जोरों से, एक्साइटेडली. सो पोएट ने इमेजिन किया कि एक बार वो बहुत ही जोर से एक्साइटेडली नाच रहा है, and he or she saw that a cloth dancing excitedly, struggling so widely till she was free. वो कब तक डांस करता रहा? स्ट्रगल मतलब वो बहुत जोर से उनसे स्ट्रगल करता रहा अपनी फ्री होने के लिए. मतलब उस क्लॉथ से जो टंगा होता है, वहां पे हम लोग कुछ उसको चिमटे से उसको पैक करके रखते हैं ताकि वो उड़ ना जाए कपड़े. सो जब तक कि वो क्लॉथ लाइन से फ्री ना हो जाए, until and unless it will become free from that cloth line, she was struggling so wildly. बहुत ही जोर से संघर्ष कर रही थी उस क्लॉथ लाइन के साथ, उसे उससे फ्री होना था, उस क्लॉथ लाइन से बंध के नहीं रहना था. that the cloth wants to free from that cloth line, स्वतंत्र होना था, उसको अलग होना था, बिकॉज वो वहां पे टंगे रहते हैं और उसको चॉपर से चिमटे से पकड़ के रखा होता है, पक्के से बांध के रखा होता है, अटक के रखा है. नाउ दैट क्लॉथ हैज डिसाइडेड टू फ्री फ्रॉम दैट क्लॉथ लाइन, एंड देन दैट्स व्हाई शी इज स्ट्रगलिंग सो वाइल्डली until she was free. जब तक वो फ्री ना हो जाए तब तक उसने उसका स्ट्रगल चालू रखा और वो फ्री हो गए. फिर आप यू कैन सी इन द पिक्चर below, there is some clothes are kept on the cloth line, and there is one cloth which is above that cloth line, that was free from that cloth line. वो अलग हो गया, फ्री हो गया, क्योंकि वो बहुत जोरों से स्ट्रगल कर रहा था, जोरों से हिलडुल रहा था, and that she was free from that cloth line. फिर बाद में क्या हुआ, जब फ्री हो गया वो स्ट्रगल करके वो क्लॉथ, then what happened to this? Let us see. Then leaving pegs and clothesline behind her, she flew like a bird and no one can find her.
और फिर जो पेक्स का मतलब है जो चिमटा, जो हमें उसको क्रॉस लाइन पे हम लोग उसको कपड़े को पक्का रखने के लिए, वो उड़ ना जाए इसलिए अटैच करके रखने के लिए हम चिमटे का यूज करते हैं, चॉपर का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेक्स. सो व्हेन दैट क्लॉथ वाज फ्री, तो उसने वो पेक्स को लीव कर दिया, वो जो चिमटे थे उसको छोड़ दिया. देन लिविंग पेक्स एंड क्लॉथ लाइन बिहाइंड हर, और क्लॉथ लाइन को भी पीछे छोड़ दिया एंड पेक्स को भी पीछे छोड़ दिया. शी हैज लीव दैट पेक्स एंड क्लॉथ लाइन बिहाइंड, उनको पीछे छोड़ दिया. एंड शी फ्लू लाइक अ बर्ड एंड नो वन कैन फाइंड हर. एंड as like birds she flew away in the sky. ऊपर आकाश में उड़ गई वो, जैसे कि बर्ड्स उड़ते हैं. शी फ्लू लाइक अ बर्ड एंड नो वन कैन फाइंड हर. उतना दूर चली गई उड़ के क्लॉथ लाइन को छोड़ के एंड पेक्स को, so that no one can find her. No one from the poet's family and as well as poet not able to find that cloth. उस कपड़े को फिर कोई भी नहीं ढूंढ सका. बहुत जोर से एक आध बर्ड्स की तरह वो उड़ गया, क्लॉथ लाइन को भी पीछे छोड़ दिया एंड पेक्स को भी पीछे छोड़ दिया और उड़ के चला गया और उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाया. नो वन कैन फाइंड हर. दैट क्लॉथ हैज gone away in the sky and no one can find her. So what happened next? I saw her gleam like a sail in the sun. Now that cloth was very bright और चमकदार बोल सकते हैं. ग्लीम, उसकी चमक बहुत थी उस कपड़े में, बहुत ही अच्छा कपड़ा था. So that the poet is saying that I saw her gleam, मैंने उसकी चमक देखी थी, like a sail in the sun. See, when there is a sail in the sea or in the lake or in the river and ऊपर से सूरज उसमें जब सूरज का फोकस उस पर, प्रकाश उस पर पड़ता है तो जैसे चमकती है सेल पानी में. सिमिलरली इन द स्काई वो जो कपड़ा था वो सेल की तरफ, चमकती हुई सेल की तरफ दिख रहा था, चमकती हुई कश्ती जहाज की तरफ दिख रहा था कवि को, जो पोएट को. आई सॉ हर ग्लीम लाइक अ सेल इन द सन. सूर्य प्रकाश में जैसे सेल दिखती है, चमकती है. सिमिलरली दैट द क्लॉथ वाज ग्लीमिंग, दैट लाइक दैट द ग्लीम वाज दैट क्लॉथ. उस तरह का ग्लीम, और मैंने वो देखा है. कवि बोल रहे, पोएट बोल रहे कि मैंने उनकी चमक देखी है, जो कि सूरज में कश्ती जैसे चमकती है उस तरह उसकी चमक थी. फ्लैपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लैपिंग फॉर फन. और जो क्लॉथ है वो फ्लैपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लैपिंग फॉर फन. वो जब हवा में उड़ रहा है तो फ्लिप फ्लैप फ्लैप ऐसे आवाज कर रही है, थिरक रही है, एकदम हवा में उछल रही है. डोरी से तो वो क्लॉथ लाइन से तो वो फ्री हो गई है, बट पोएट इज वाचिंग टुवर्ड्स दैट क्लॉथ, दैट द क्लॉथ वाज फ्लैपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लैपिंग फॉर फन. उसको खुद को मस्ती करने के लिए, आनंद व्यक्त करने के लिए, फन के लिए वो बहुत ही फ्लिप फ्लैप कर रही है, उड़ रही है एकदम जोर से, जैसे कि वो थिरक रही है, जोर जोर से आवाज कर रही है उसकी खुद की खुशी के लिए, फॉर फन. दैट क्योंकि वो अभी फ्री हो गई है उस क्लॉथ लाइन से, एंड फॉर इन ओन फन दैट द क्लॉथ वाज फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लैपिंग. वो एकदम थिरक रही है, डांस कर रही है, नाच रही है. Nobody knows where she now can be, hid in a ditch or drowned in the sea. See, अभी तो उड़ गया. जब तक देख सकते थे पोएट ने उसको देखा, फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग कर रही है, डांस कर रही है हवा में, चमक दिख रही है, चमक रही है. बट नाउ nobody knows where she now can be. अभी किसी को इसके बारे में नहीं पता है कि वो क्लॉथ है कहाँ. nobody can know. किसी को नहीं पता, बिकॉज वो उड़ के हवा में चल के बहुत दूर कहीं चल गई रहेगी, तो किसी को भी उसके बारे में पता नहीं है कि वो अब है कहाँ. वेयर शी नाउ कैन बी, वो कहाँ अब हो सकती है. वो जो क्लॉथ लाइन से फ्री होके उड़ के हवा में चल गया, वो अभी कहाँ पे है, कौन से स्थान पे है, किस जगह पे है, वेयर इट इज राइट नाउ. नोबडी कैन नो, नो वन कैन नो, किसी को भी नहीं पता. मे बी hid in a ditch or drowned in the sea. मे बी वो कहीं खाई में चुभ गई होगी, बहुत बड़ी खाई होगी पर्वतों के अंदर. डिश मतलब खाई होता है उसका मतलब, और ड्रॉन इन द सी, और मे बी इन दैट क्लॉथ विल ड्रॉन इन, मे बी दैट ड्रॉन इन द सी,
किसी समुद्र में वो डूब गई होगी, बहुत बड़े समुद्र में, या डूब भी गई होगी, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज नो वन कैन नो, किसी को भी पता नहीं है कि वो अब है कहाँ और कहाँ पे चली गई है। शायद वो किसी खाई में चुप गई रहेगी, या शायद किसी समुद्र में डूब गई रहेगी, ऐसे कवि को लग रहा है, ऐसे पोएट को लग रहा है। नाउ what was that cloth? Actually it is given in the last two lines. All that we are learning about that cloth which has free from the clothesline and flew away in the air and gone high and high, and no one can know where she is right now. So what was that cloth? She was my handkerchief not long ago. Now poet is saying with the cloth, जिस क्लॉथ के बारे में हम ये देख रहे हैं, वो कपड़ा जो था, वो क्लॉथ जो था, शी वॉज माई हैंडकरचिप नॉट लॉन्ग अगो, मेरा वो हैंडकरचिप था नॉट लॉन्ग अगो, मतलब अभी तक मैं उसको एज एन हैंडकरचिप यूज कर रहा था उस कपड़े को। द क्लॉथ विच फ्लूड अवे, दैट क्लॉथ इज अ हैंडकरचिप ऑफ आवर पोएट। तो वो मेरी हैंडकरचिप थी, मेरा हाथ रुमाल था, जैसे कि हम लोग सब हैंडकरचिप यूज करते हैं तो हमारे पॉकेट में रखते हैं। तो सिमिलरली पोएट यूज्ड टू कीप दैट हैंडकरचिप इन हिज पॉकेट एंड वाज यूजिंग दैट फ्रॉम रिसेंट, अब तक वो रिसेंटली तक यूज कर रहे थे उस हैंडकरचिप को। तो अभी पोएट ने कन्फेस किया कि वो जो कपड़ा दूसरा कोई नहीं था, दैट वाज माय हैंडकरचिप, दैट वाज माय हैंडकरचिप। एंड अभी क्या होगा? बट शी विल नेवर कम बैक टू माय पॉकेट, आई नो। एंड नाउ पोएट हैज realized that the cloth, that the handkerchief of that poet will be never come back to his pocket. वो उनकी खुद के पॉकेट में अभी बाद में कभी नहीं आने वाली, बिकॉज वो अभी बहुत दूर चली गई है, बहुत अलग, उनसे बहुत दूर चली गई है, और क्योंकि वो उड़ गई है, वो फ्री हो गई। अभी मुझे ये पता है, पोएट को ये पता है कि वो कभी भी फिर से कभी भी मेरे पॉकेट में नहीं आएगी, मतलब वो मुझे अब कभी भी मिलेगी ही नहीं। आई विल नॉट फाइंड हर एट ऑल, मुझे कभी भी नहीं मिल पाएगी और मुझसे जुदा हो गई। So this is all about the poem. Hope you have understood this poem properly. आपको did you understand this poem? Do you have any difficulty or anything to ask? Yes, Piyush? Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Let us read this new words which are given below the poem. Let us look towards the meaning of that. As I have told you earlier also, rescue का मतलब है restless, fidgety, unable to remain still. You have to copy this new words and their meaning in your notebook. आप ये कॉपी कर लो और लिख लो। सो रेस्क्यू का मतलब होता है रेस्टलेस, फिजरी, अनेबल टू रिमेन स्टिल, मतलब जो शांत नहीं बैठ सकता, ऐसा उछलने वाला। अभी हमारे क्लास में भी कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, वो शांत नहीं बैठते, वो बेंच पे उसे जंप करते ही रहते हैं, लाइक दैट रेस्क्यू, जो कि आराम से नहीं बैठ सकता। केपर, लीप, स्किप और डांस अबाउट इन अ लिवली प्लेफुल मैनर, मतलब एकदम जोरों से, जिंदा दिली से, एकदम उछल के एकदम एक्साइटेडली डांस करना, उसे बोला जाता है लीफ, केपर, सॉरी। एंड डांस का मतलब है वॉक और मूव विथ हाई स्प्रिंगली लेग्स, एकदम स्प्रिंगी लेग्स, मतलब जो उछलते हैं जैसे कि हमारे पैरों में स्प्रिंग है और हम लोग कैसे उछलेंगे, लाइक दैट मूवमेंट करना, उसे बोला जाता है ट्रांस। नेक्स्ट है वाइल्डली का एक्चुअल मीनिंग होता है जंगली, लेकिन इस पोएम में देयर इज, इन दिस पोएम इट इज यूज्ड एज अ वेरी हार्ड, वायलेंटली, मतलब एकदम जोरों से, वायलेंटली, एकदम ताकत से डांस करना या मूवमेंट करना, उसे बोला जाता है वाइल्डली। एंड टेक्स का मतलब है द पिंस और दैट चिमटा जो होता है, पिंस या कुछ यूज करते हैं हम लोग कपड़ों को सिक्योर करने के लिए, टच की, ताकि वो उड़ ना जाए क्लॉथ लाइन पे, that is called as text. So this is all about the new words. The homework is you have to write it down the
आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द रेफरेंस टू द पोएम। ये जो है आपको होमवर्क करना है, 5-6 क्वेश्चंस है, ये आपको होमवर्क करना है आपके घर पे, ठीक है। So we'll stop here. We'll stop our class, madam.